Morning, ladies and gentlemen. Okay, I welcome you all on behalf of our 91st Air Force anniversary. Okay, this station, in coordination with Civil Administration, Indian Army, and all the sister services, is always forthcoming as IAF is with all the HADR operations, disaster relief. And for today's brief, we'll be giving you an outlook of our remotely piloted aircraft operations and its role in intelligence, surveillance, and reconnaissance operations. Okay. Recently, we had carried out HADR operations in Himachal Pradesh. Okay. CEO of Helicopter 130 unit is with us. He himself was involved in it. You can ask questions on HADR operations and RPA operations. So I leave you all with the free hand to shoot your questions. Okay. Thank you. Okay, the HADR operations that were conducted for flood relief in Himachal Pradesh were conducted in two phases by the unit. The first was ex-Pathankot, in which the districts of Indauria, etc. were involved, when the waters of Pong Dam were opened and the villages downstream were flooded. Thereafter, second was when the flash floods took place in Mandi district, when all the roads were cut off and we had to support the local population as well as evacuate the sick patients. The operations were carried out ex-Bhuntar airfield in this time. Challenges faced in both the areas were different. First, ex-Pathankot, the issues were that all the villages were flooded and location of the survivors, coordination with the civil admin. We had the local SDM as well as the DCs on board and the MLAs, MPs supporting the operations at the helipads from where the operations were being launched. So during the areas where the villages were flooded, that was the time location of the survivors, the obstructions which were around, and most importantly, we had no places to land there. So there were already visuals in the media in which either winching of the casualties or the passengers was done, or we had to pick up the passengers and casualties at low hover or from rooftops. In Mandi district, it was a totally different gambit because the roads were cut off, the villages were now not having anything to eat. So relief material was a thing on which the media, the local administration was stressing in that area. And what we had to do was, altitudes were high, we had to select fields. At that time they were playing grounds. At times there were just plowed fields and we were at low hover dropping the relief supplies in these fields and handing over to the people. At time we carried out 6 casualty evacuations in that area, which included people which were pregnant ladies, people who were suffering from cancer and had to be evacuated immediately to either Shimla or to Chandigarh. That was a time when a field where the aircraft has to land was required, and the crew was displaying utmost professionalism, making sure that there is no incident which took place in the entire thing, and conducted the operations very successfully. As regards the equipment that we were using, the entire thing will be displayed to you once we reach my unit. And for the amount of work that we had done, ex-Mandi, we evacuated 6 patients, 21 passengers and 35 tons of load. A total of 69 sorties were flown and 23 hours of operations were carried out. Whereas ex-Pathankot, which is towards the Kangra district, we evacuated 6 patients. A total evacuation was 1004 passengers. And a flying effort of 69 sorties again in this area also was done. जिंदगी बचाने का चैलेंज हमारे पास एक्स पठानकोट ज़्यादा था और उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की. जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ के जो लोकल डीसीज थे, एसडीएम, एमएलएज एज वेल एमपीज जो थे वो अवेलेबल थे हेलीपैड के ऊपर पठानकोट के अंदर जहाँ पर हम लोग पैसेंजर्स को लेकर आ रहे थे. उनके पास मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे क्रू को पास ऑन कर रहे थे और क्रू उसके बाद जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे. वहाँ से रात के समय वहाँ पे ऑपरेशन नहीं चल पा रहा था बिकॉज वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोग देख नहीं सकते थे कि वहाँ पर क्या है ग्राउंड के ऊपर.
सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर यही था कि वहाँ पर कोई भी जगह लैंड करने के लिए नहीं थी। तो या तो हमें उन्हें विंच अप करना पड़ रहा था, जो हम आपको इक्विपमेंट दिखाएंगे, या फिर हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे लेकर आए हुए लेकिन ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा है, सीढ़ियों के अंदर खींच रहे हैं लोगों को, रूफ टॉप्स के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके का ऑपरेशन था, जिस वजह जो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। मिस्टर शाहनवाज, यू वांटेड टू आस्क। सर, ये जो ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं, ये जो आपने मंडी और मंडी और पंजाब में ऑपरेशंस किए, इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में कितने ऑपरेशंस आप लोग कर चुके हैं और कितना लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, कितने ऑपरेशन आए अपने किया पिछले 1 साल में? I'll get the data and come back to you. मैं आपको डाटा निकाल कर दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए। ऑफहैंड मेरे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग JNK सेक्टर एज वेल एज हिमाचल पंजाब सेक्टर के अंदर और कोई भी इस तरह की आपदा आती है तो हमारे हेलीकॉप्टर्स जाते रहते हैं उस चीज़ के लिए रेगुलरली। Yes, Mr. Bhatt. Yeah, good morning, sir. So my question is not related to the rescue operations. Can I ask it? Depends on the question. Yeah. Sir, Jammu Air Force Station remains one of the most, sensitive Air Force stations in the country. And in year 2021, we saw that drone was used by Pakistan and terrorists to carry out, attack on this Air Force station. So this drone menace has increased since then, and this threat still looms large. So, have the enough measures been taken to counter any such threat in future? See, we are prepared for any eventuality, and all measures are in place. Any kind of such provocation in future? We'll stick to the. सर क्या इस पूरे इवैक्यूएशन के लिए कोई स्पेशल टीम्स बनाई गई थी या कुछ मतलब स्पेशल टीम को बाहर से बुलाया गया था, कोई ऐसी टीम बनाई गई थी जिसकी मदद से मतलब ये ऑपरेशन में सक्सेसफुल हुई और मतलब इवैक्यूएशन करने में आसानी हुई? इन ऑपरेशंस के लिए अलग अलग एजेंसीज थी जो काम कर रही थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया, NDRF वहाँ पे अवेलेबल थी, हमारे अपने गरुड्स ऑन बोर्ड थे जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते थे, लोगों को धक्का देकर अंदर डालते थे हेलीकॉप्टर के अंदर, और इसके बहुत सी फुटेज भी मीडिया के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। सवाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऑपरेशंस करते हैं, बट कितने करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। बट इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो केपेबल है जितना भी सर्विलेंस है, रिकॉनिसेंस है या इंटेलिजेंस गैदर करने के। रेस्क्यू एज अ हेलीकॉप्टर पायलट, रेस्क्यू ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी की जान बचाने के लिए पूरे सीक्वेंस में हम लोग डॉक्टर से पहले आते हैं, बिकॉज हम पेशेंट को उसकी साइट से हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं इस चीज़ के लिए। एक इंसिडेंट जो हम लोग कर रहे थे मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक कैंसर पेशेंट थी जो बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी और उसको इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मंडी से उसको IGMC शिमला लेकर जाना था और उसके पेरेंट्स वगैरह भी आए थे मंडी में हमारे पास कि बेटी वहाँ पे फंसी हुई है, ये लोग नीचे आ गए हैं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसकी मेडिसिन वगैरह सारी ख़त्म हो गई हुई है। तो हम लोगों ने एक फील्ड जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता है, किसी तरह से जाकर जहाज़ को टिकाया। मंडी के अंदर एक एडिशनल प्रॉब्लम ये थी कि सारा का सारा ऑल्टीट्यूड जो थे वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा थे जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके चाचा वगैरह उसको एक डोली जैसी में उठा कर लेकर आए हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर डाला है। जब हम उसको वापस लेकर आए हैं मंडी के अंदर, बहुत ही इमोशनल था जब पेरेंट्स ने उनको देखा और आके हमें भी गले वाला लगे हैं इस चीज़ के लिए। और बेस्ट पार्ट यह है कि बहुत दुआएं दी उन्हें हमें। मिस्टर अजय जांडियाल। हेलो। हाँ सर, अजय जंडियाल हूँ
सर, जब इस तरह की ऑपरेशंस के लिए टीम्स जाती हैं, खासतौर पे फ्लड हमने देखा J&K में भी जब हुआ था फ्लड जैसे हालात 2014 में, या फिर अर्थक्वेक के दौरान 2005 में, तो किस तरह का टीम स्पिरिट रहता है, किस तरह की चीज़ें माइंड में रहती हैं जब कोई भी ऑफिसर या जवान जो है ऑपरेट करता है इस सिचुएशन में, क्योंकि हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं। इस तरह के अनफोर्सिन हालात के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका क्रू है वो अच्छी तरह ट्रेंड होना चाहिए। हम लोग नॉर्मली जब ट्रेनिंग करते हैं तो एयरफील्ड से करते हैं, हेलीपैड से करते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि आसपास क्या है, उस जगह के अंदर क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन ऐसी जगह के ऊपर प्रॉब्लम ये आती है कि क्रू बहुत ही सिलेक्टिव रखना पड़ता है। लेकिन एयरफोर्स की ट्रेनिंग इस तरह से है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की आपदा को टेक ऑन करने के लिए एकदम रेडी है। सर, जम्मू में जो आप सर्वेलेंस ऑपरेशंस करते हैं, क्या इसके लिए कोई स्पेशल टीम्स डिप्लॉय की गई? और दूसरा सर, सक्सेस रेट क्या रहता है ऐसे ऑपरेशंस का, खासतौर पर जंगल काफी टफ रहता है सर? सक्सेस रेट मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जनरली हम सक्सेसफुल ही रहते हैं हमेशा किसी भी ऑपरेशन में। एज फार एज टीम इज़ कंसर्न तो हमारी पूरी यूनिट डिप्लॉयड रहती है, कभी भी कोई इन कोऑर्डिनेशन विद AOC J&K और आर्मी, तो हम ये ऑपरेशंस करते रहते हैं। सर गुड मॉर्निंग, सवाल है सर मेरा, विद हॉस्टाइल लेबर लाइक पाकिस्तान 5 to 6 years कि ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन बदल जाती है, तो हाउ मतलब प्रिपेयर्ड वी आर कि हम रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, the question, as you had been saying that you play a role of a savior because before doctors, the Air Force pilots reach there, you try to rescue because you are playing a role of a savior. My question is that, as you said that you were able to evacuate one of the cancer patients, many times I felt that because we saw that during Kashmir floods also, some people were hesitant. Even while you people were slithering down the rope trying to lift somebody, they were hesitant because they were not trained that well. You came across any such instances where the people were hesitant, they were not confident enough? And how you generate confidence among people at that stage? Said they should be confident enough to hold your hand and come up the rope and be inside the helicopter. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस चीज़ के लिए बहुत से लोगों को हाइट का फियर होता है, प्लस इतनी बड़ी मशीन अगर घूम रही है, उसका डाउन वॉश आ रहा है, तो डर तो लगता है उस चीज़ के लिए। दैट इज़ वाई जो हमारी टीम होती है उसके अंदर गरुड़ के 2 कमांडोज रहते हैं, 2 या 3 कमांडोज ऑन बोर्ड रहते हैं, जिसमें से 2 लोग उतर कर जाते हैं। एक विजुअल जो मीडिया के अंदर ऑलरेडी फ्लोट अराउंड कर रहा है, उसके अंदर हम लोग लो होवर के ऊपर, एक पहिया हमारा एक छत के ऊपर है, बाकी हेलीकॉप्टर बाहर है, और 2 हमारे कमांडोज जंप करके छत के ऊपर जाते हैं। जहाज ग्राउंड के ऊपर नहीं है, जहाज हवा में है, और आधा पहिया बाहर है, आधा अंदर है। वो जंप करके नीचे जाते हैं, वो हाथ पढ़ के लोगों को लेकर आते हैं। एक तो जब कोई हेल्प कर रहा है आपकी, उसी में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आप लोग मीडिया हैं, अगर आप यही चीज़ बताएं जनरल पब्लिक को भी कि ऐसे ऑपरेशंस के अंदर वो पूरा ट्रस्ट हमारे ऊपर कर सकते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर। मिस्टर नीरज। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.